long time. Thank you. Tell us, what is the reason you said yes to this single? आई थिंक आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना होगा, शूट देख रहे थे आप लोग, गाना सुना होगा आपने। मैं जगजीत सिंह जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे जब ये गाना सुनाया गया, मुझे जगजीत सिंह जी की याद आई। वो फ्लेवर, वो वाइब इस गाने से, वो महक जगजीत जी की मिली मुझे। तो मैं मना ही नहीं कर सकता क्योंकि जगजीत जी इज़ गॉट अ बिग पार्ट ऑफ माई हार्ट। ही इज़ बीन अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ द फैमिली ऑफ माई पेरेंट्स। एक he used to consider me like his godson, and my entire family miss him every day. And so when this song came to me, I said I have to do it. It'll be like a tribute to Jagjit ji in a sense. And singer, gayak, producer है यहाँ पे मेरे बगल में. He's a wonderful man. He is very down to earth and very sweet and humble. Uh, Navneet ji is a person who is a friend now because we've done a show together. एक शो किया था हमने अम्मा With Shabana ji शबाना and- जी, युविका चौधरी। एक महीने का शूट था लगातार, मॉर्निंग टू नाइट। We had a great I fun. had a ball during that shoot. So when he approached me with this, saying that he's directing it, I said I have to, of course, be a part of it. And then this beautiful girl right next to me, who wouldn't want to work with her? So multiple reasons. Nara, what's your view? So basically, my family is into singing, and we all are like pretty much singers. And I have a lot of singers in my family. I sing myself as well. And the song was really exciting for me because this is something which is very different. It's a ghazal. Generally, you see a lot of melodious tracks coming in the market, or there's a lot of pop culture which is coming back, or there are different type of music which is coming back in the market, and there are a lot of music albums happening. But this is something different. This is a ghazal, and Navneet ji shooting it very aesthetically, very beautifully. So when I got to know the complete team is actually from a film background, and Navneet ji has worked with even one of my favorite actor, Irfan Irfan. sir. So I got really excited, and the team was lovely. And I did a web some time back, कुछ महीने पहले, where I was shooting a web, and a day prior Ashmit was shooting the web with the same director. That is some other story though. So I got to know that okay, Ashmit is shooting, and today I was like, hey, hello, we are here catching up. We could not meet then, but we are meeting here. So it's a chance to associate with like great artists and great technicians. And you have Karthik ji, who's the producer for the album. So in totality, it's a great album, and wish us luck. I hope we cross like millions and millions of views, which every artist Millions. wants. What is the director brief to you, Manara? So the director brief was basically we are going to be shooting it very aesthetically. So मैं बता सकती हूँ थोड़ा Yes, सा? yes. So it's a story, it's a narrative which is being given within like 3 minutes. So it's a story which is getting bounded with the ghazal take to it, and you will see a different side of me, which I always say. And then the 3-minute shoot is going to be very performance oriented, so you will see a variation in my performance, and it might give you a slight touch of my first film which I did here in Bollywood. But yeah, shot very differently, and you will also see me a lot in like Indian wear, which people have not really seen me. They've always seen me in Western wear and everything, but Navneet ji is trying to give a different take, and you're going to be seeing me in a lot of saris and lehengas. And although in my personal life I'm a sports shoes kind of person, but today I'll try and carry it. वो ऐसा कौन सा मौका होता है अश्मिता मन्नारा जी, जब आप लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर सुकून चाहिए, यहाँ पर आज थोड़ा सुकून मिला, या आज ये शूटिंग करके थोड़ा सुकून मिला घर पे? आप बताइए, आप लोग। देखिए, एक साल तक ऑलमोस्ट हम सब सुकून में थे। ज़्यादा ही पे, सुकून हाँ, हो गया. उसके बाद घर सुकून पे गाना हमने लॉकडाउन start कर थे, दिया। सुकून ही सुकून था, तो हमें अब कैमरे के सामने सुकून मिलता है. दिस इज़ आवर पैशन, दिस इज़ आवर लव, आवर फर्स्ट लव. तो जब हम कैमरे के सामने आते हैं हमें सुकून मिलता है एंड खुशी मिलती है. और जब टीम अच्छी हो, जैसे कि मनारा जी कह रही थी, द टीम इज़ ग्रेट, यू वर्किंग विद ग्रेट आर्टिस्ट, यू वर्किंग विद अ डायरेक्टर हु इज़ very talented and a brother. Thank you. And producer was so sweet and humble and such a great singer. So you want to be a part of it. So
सुकून ही है, और हम यहाँ पे इतनी खूबसूरत लोकेशन पे हैं, सुकून ही सुकून है। अश्विन, क्या नया ट्रेंड एक दौर हमने देखा है 90 के दशक में, जब इस तरह की गजलों का दौर था, पंकज उधास और भी स्वर्गीय जगजीत था जी। उस दौर को लाने की कोशिश है, क्योंकि जब जैसे ही आपने भी कहा और हम सबको भी महसूस हुआ, जैसे ही हमने सुना है ऐसा एहसास हुआ कि जगजीत सिंह जी की याद ताज़ा हो। Do you think it's a new start to reset that trend? Yeah, of course. Anything which is new, which is coming back. So the music is such that music, it always comes back. Music never goes. So this is something which is coming back, and we are bringing it with a great team. So of course. I think ghazals have their place and will never be out of our system, because it's something that touches your soul. We have, like Manara was saying, this trend of pop music, Punjabi music, and these songs, yeah, for sure, they're great songs and hit गाने हैं, लेकिन एक साल के अंदर आप वो गाने भूल जाते हैं। लेकिन songs like ghazals, which are so evergreen, they songs that touch your soul will always remain with you. So I think this is one of them, and we hope that ये super hit गाना हो, and इनकी जो एल्बम है, काफ़ी गाने हैं इसमें, काफ़ी गज़ल है इसमें। I hope that all of them do well, and it starts a trend. I hope that this because it's part of our culture. Ghazals is a very strong part of our history and our culture. So it's very important that we keep it alive. Yeah. मल्हारा जी, थोड़ा सा फूल का शूटिंग का एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। हमने देखा काफ़ी रिटेक लिया एंड लाइक हॉट यहाँ पर है, लेकिन आप बताइए थोड़ा सा। I think पूल, बारिश, इसका, इन सब चीज़ों का, वाटर बॉडीज़ का मेरे से बहुत पुराना कनेक्शन है। I have done about 8 films, right from my first film which I did here in Bollywood. तब से लेकर अब तक मैं कोई भी फिल्म कर लूँ, चाहे एक रोम कॉम कर लूँ, चाहे मैं एक स्वीट सी लड़की कर लूँ, या फिर मैं एक बहुत नॉटी सी लड़की कर लूँ, बट बारिश का सीन तो होना ही है और पानी का सीन तो होना ही है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट न्यू फॉर मी, एंड नाउ आई नो कि अच्छा, अब मुझे लग रहा है आने वाली, अभी 8 कर ली, आने वाली 8 फिल्मों के लिए मुझे प्रिपेयर रहना चाहिए। एंड आई थिंक आने वाली फिल्मों के लिए मैं डायरेक्टर को जाकर बताऊंगी, अच्छा ये वाला शॉट मेरा हो चुका है, अब आप ये कैंसिल कर दो, अब आप कोई ऐसा वाला शॉट बनाओ। सो आई कीप माई क्रिएटिविटी गोइंग इन एंड अराउंड द पूल और द वाटर एलिमेंट्स, आई वुड से। आप बताइए थोड़ा सा अपना सीन के बारे में, कैसा आपका एक्सपीरियंस? मैं बस भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि पानी में ये है और मैं नहीं। थैंक यू नवनीत, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू फॉर पुटिंग हर इन द वाटर। ओके, अश्विन और मनारा, मेरा सवाल आप दोनों से है, किस जी। तरीके से ये गाना आप दोनों तक पहुंचा? कैसे पहुँचा? ये तो ये बताएंगे। द टाइम भी कार्तिक जी ने हमें गाना सुनाया, और वी वांटेड समवन जिनकी एक इमेज हो मार्केट के अंदर, हु कैन कैरी द सॉन्ग। क्या होता है, आप शूट तो किसी भी आर्टिस्ट पे कर लेते हैं, लेकिन वो जो राइट इमोशन इमोट करना होता है, वो हर एक की बस की बात नहीं होती, और मतलब वो यू कैन सी दैट कि वो निकल के नहीं आ रहा। सो मनारा, जितना भी मैंने मनारा का काम देखा था, शी इज़ वेरी गुड एट गिविंग एक्सप्रेशन विदाउट सेइंग, शी स्पीक्स अ लॉट। इवन अश्विन भाई, विच आई हैव वर्कड विद इन पास्ट, तो मोस्टली बिना बोले जब आप सारे इमोशंस इमोट कर देते हो, और ये गाने में इतने सारे इमोशंस हैं, अगर आप जब सुनोगे आपको पता लगेगा कि इसके अंदर इतने सारे इमोशंस हैं जो आपको एक्सप्रेस करने हैं थ्रू आवर फीलिंग्स। सो दैट्स व्हाई वी कनेक्ट बोथ ऑफ देम। आई नो, आई कॉल देम अपनी ब्रो, मतलब हमारे पास एक बहुत अच्छा गाना है, हमने सुनाया तो दे बोथ लव्ड इट। सो दैट्स हाउ आवर जर्नी स्टार्ट्स। एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन? आपका क्या रिएक्शन था जब उन्होंने गाने के बारे में? तो उन्होंने ही जैसे हमें ढूंढ लिया। सो माई रिएक्शन वॉज एक्चुअली नवनीत जी कॉन्टैक्टेड मी थ्रू माई मॉम and mama ke through kuch I don't know what was the connection, and we just happened to meet and I was like, अच्छा ये गाना है, okay fine, अच्छा क्या costume है, अच्छा ठीक है, उसके बाद what's your plan, and you know I'm a person who talks a lot in my personal life, तो मेरे बहुत सारे questions थे and अगला सवाल प्लीज। अगला सवाल, so now you know the story, and उसके बाद नवनीत जी was like, Manara, are we shooting? I said okay let's shoot. What your Like I said, Mickey Bhai is a brother. When he approached me, I don't think मेरे पास choice ही था। उन्होंने कहा कि ये गाना है, हमें करना है, और आप बस एक डेट दे दो जब आप फ्री हो। As simple as that. But when I heard the song, जब मैंने गज़ल सुनी, like I said, मुझे जगजीत
uncle की याद आई and I just had to do it because it's like a tribute to him. So it was a no-brainer. See, to the director. Yeah. What is the most challenging part while shooting it? You know, it starts on a very sensual mood. She's doing in a swimming pool. It has to be that subtle. It has to look, you know, decent. It Yeah. should not be vulgar. You know, vulgarate. And we can make out. What is the most difficult part while shooting this? सी आप इमेज तो कैप्चर कर लेते हो, लेकिन राइट इमोशन जब तक आप इमोट नहीं कर पाते हो तब तक आप जो कहना चाह रहे हो वो कभी भी ऑडियंस से कह नहीं पाओगे. तो विजुअल कैप्चर करना इज़ अ वन थिंग और राइट इमोशन कैप्चर करना इज़ अ वन थिंग. सो मैंने सबसे चैलेंजिंग पार्ट सबसे पहले ही सॉल्व कर लिया था कि राइट एक्टर्स को कास्ट करके. जैसे मेरे पास में राइट एक्टर्स आ गए तो दे आई जस्ट नरेटेड देम कि व्हाट आई वांट एग्जैक्टली फ्रॉम दिस स्टोरी. ये म्यूजिक क्या कह रहा है और इससे हमें क्या कहना है, ऑडियंस तक कौन सी स्टोरी पहुंचानी है. सो वंस आई नरेटेड देम, उसके बाद मुझे सिर्फ ये बताना पड़ा इन लोगों की भैया इस सेक्शन में ये हो रहा है, इस सेक्शन में ये हो रहा है, रेस्ट दे हैव डन देयर पार्ट. बहुत सरप्राइज होता है जब आप पहला सीन हमने देखा मनारा वाज वॉकिंग फ्रॉम देयर एंड यू नो सॉन्ग गोइंग इन द बैकग्राउंड, आपको कुछ और फील आता है. लेकिन जब गाना बजता है तो यू नो यू माइंड गेट सी दैट सरप्राइज, वो सरप्राइज देखने के लिए ऑडियंस आपके प्लेटफॉर्म तक आती है. और इंटेंशन कि अगर आप डायरेक्टली किसी को कोई चीज़ स्ट्रेट वे में प्रेजेंट करोगे तो लोगों को लगता है अच्छा ये तो मैंने देखा हुआ है, ये तो मैंने सुना हुआ है. बट आप जब उसका खाली अप्रोच, दुनिया में कोई भी कहानी नई नहीं है, हर कहानी आपने कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे सुनी है, बट उसका जो प्रेजेंटेशन है, बोलने का तरीका है, वो हमेशा नया होता है. तो वी आर ट्राइंग टू से सेम स्टोरी विद अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन, but it is a very emotional, the song is very emotional and the content is complementing each other, I will say. sensual emotional of No, not at all. It is not in that way. It is something which will connect to your heart. ये आपके हार्ट को कनेक्ट करेगा, आपके इमोशंस को कनेक्ट करेगा, आपकी यू विल फील. जितने भी लोग आप लोग यहाँ पे जब आप ये गाने को पूरी तरह से सुनेंगे और विजुअल देखेंगे, आप इससे कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे रिलेट कर लेंगे. जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है एक डायरेक्टर के लिए, वो हमने करने की कोशिश की है इसके अंदर. सर के सवाल में और एक ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि कैप्टन ऑपोजिट हैं आप, तो जब इनके साथ में आप काम करते हैं, मनारा है उसमें कितना सुकून देते हैं आपको एंड कितना टेंट्रम दिखाते हैं, या आप बताइए. भाई जब देखो, जैसे मुझे कोई टेंट्रम दिखाएगा मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मैं बोलना चाहता हूँ अगर वो समझ जाए तो माई लाइफ इज सॉर्टेड. तो विद देम माई लाइफ इज सॉर्टेड कि जो मैं बताना चाहता हूँ उनसे, उनको मेरे को सेकेंड टाइम एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता. दे जस्ट इमोट एंड गिव मी दोज रिएक्शंस. अच्छा, किस प्लेटफॉर्म पे हम इसको इस गाने को ला रहे हैं और ये वीडियो को भी ला रहे हैं, सोशल मीडिया का दूसरे प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं? कार्तिक भाई प्लीज़. सर बताइए. एज सुन एज पॉसिबल आपको बताएंगे, अभी डेफिनेट कुछ है नहीं. थैंक्स गाइस. प्लीज हैव अ डिनर एंड देन गो. थोड़ा सा यहाँ पर सब साथ में आ जाइए. अरे पीछे आ जा, सुकून मिलेगा भाई. विजुअल्स है, विजुअल्स है. आप लोग आपका फेवरेट पोज भी कर सकते हैं. यो डन गाइस. थैंक यू सर. मैडम आप सर आप नहीं चलिए सर, कैसे चलेगा, विजुअल्स लेने खाली. अरे अरुण भाई एक सेंटर में देखिए ना सर, साथ में.